دہلی کالونی یہ پنجاب کالونی کے بالکل برابر میں ہے اور کلفٹن کے درمیان میں ایک بسی ایسی متوسط طبقے کی ایسی سوسائٹی ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی وجود میں آ گئی تھی۔ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان سے لٹے پٹے مہاجرین کے قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دلی سے آئے پنجابی سوداگران دہلی کے مہاجرین کے ایک حصے نے عیدگاہ میدان میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ میدان جوگیوں سے پر تھا۔ ایسے میں سندھ کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس طرح سے بنی جھگیوں پر انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس وقت کے کمشنر کراچی سید ہاشم رضا صاحب سے صورتحال کا نوٹس لینے کو کہا۔ ہاشم رضا صاحب جانتے تھے کہ یہ دلی کے صاحب وقار تاجر ہیں جن کو افتادہ زمانہ سے نے اس حال کو پہنچایا ہے، لہٰذا رضا صاحب نے انہیں کسی طرح سے قائل کر لیا کہ وہ کلفٹن سے نزدیک ایک وسیع قلعہ زمین پر اپنی نئی دنیا آباد کریں۔ جب یہ مہاجرین آباد ہو گئے تو مناسب قانونی کارروائی کے ذریعے الاٹمنٹ ہو گئی اور مہاجرین عیدگاہ سے بتدریج نئی منزل کی جانب منتقل ہونے لگے۔ اس کالونی کی آباد کاری میں مہاجرین کے ہمدرد سندھ کے معروف سماجی و سیاسی رہنما پیر الہی بخش کا بھی کردار تھا، جس کے سبب اولاً یہ کالونی پیر الہی بخش کالونی کہلائی۔ اس کے برابر میں ایک پنجاب کالونی پہلے ہی سے ہی موجود تھی، لہٰذا شروع میں اسے لوگوں نے پنجاب کالونی ہی کہا، مگر بعد میں کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر انتظام اس بستی نے اپنی شناخت دہلی کالونی کے نام سے بنا ڈالی۔ اس کالونی کو مسکن بنانے والے دلی سے ہجرت کر کے آئے پنجابی سوداگران کی کراچی میں اپنی انجمن جمعیت پنجابی سوداگران دہلی کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ ابتدائی دنوں میں رہائش پذیر یہ برادری آج بھی دہلی کالونی کی اکثریتی برادری ہے، اسی لیے کالونی میں جمعیت پنجابی سوداگران کے تحت رفاع عامہ کے تمام ادارے متحرک ہیں۔ یہی حال مساجد اور ان کے ماحول کا ہے۔ اس کالونی میں آپ جیسے ہی داخل ہوں گے وہاں پر آپ کو حلوہ پوری، نہاری، چوڑیوں اور پراندے کی دکانیں نظر آئیں گی تو خوشگوار حیرت کی انتہا ہوتی ہے۔ دہلی کالونی کلفٹن کے جدید سے جدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ماحول کے دامن میں بسا ایک ایسا ہی کوچہ ہے جس کے دامن میں تقسیم کے فوراً بعد کا کراچی اور دلربا دلی کا انداز جھلکتا ہے۔ دہلی کالونی ویرانے میں آباد ایک گوشہ کا نام ہے۔ گویا صحرا میں نخلستان، کوئی خود وہاں رہتا تھا، کسی کا ننیال وہاں تھا تو کسی کے رشتہ دار۔ یوں دہلی کالونی سے رشتہ سب ہی کا روز اول سے جڑا ہے۔ دور دور تک آبادی نہ تھی بلکہ ریت ہی ریت تھی جو خوب اڑتی تھی، اور در و دیوار اور صحن تو ریت سے اٹ جاتے مگر پانی بھی محفوظ نہیں رہتا۔ مشکیزے میں یا گھڑے سے پانی بھرو تو پانی کے ساتھ آئی ریت سے ستو کا گمان ہوتا۔ جس طرح آج کے جدید تر کلفٹن میں دہلی کالونی کا انداز جدا ہے، اسی طرح قیام پاکستان کے وقت بھی یہ بستی جداگانہ ماحول رکھتی تھی۔ کراچی کے دوسرے علاقوں سے آ کر اس بستی میں قدم رکھنا گویا دلی میں پہنچنا تھا۔ وہی تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکانات، مکانوں کے آگے آنگن، آم اور جامن کے پیڑ، مشکیزیں اٹھائے دوڑتے پھرتے ستے دلی کے باورچی
दिल्ली के कबाब, दिल्ली की निहारी और दिल्ली के नान बाई। नमाजें जिन मसाजिद के साए तले कायम हुई, इन मसाजिद ने इन्हीं मसाजिद का नाम पाया जो दिल्ली में छोड़ आए थे। छोटी मस्जिद, शमीम मस्जिद, बड़ी मस्जिद जो दिल्ली मस्जिद भी कहलाती है। दिल्ली के कदीम स्कूल, लड़कों का नजम स्कूल और लड़कियों का अमीनिया स्कूल भी गोया दिल्ली से सरक कर इसी कॉलोनी में आ गए थे। गुफ्तगू में वही ठेठ अंदाज और अंदाज में वही दिल रुबाई, कहीं बला की नरमी और कहीं दिल्ली वालों की अकड़। (1956) में यहाँ पर 250 गज का प्लॉट 300 रुपए में मिलता था। दिल्ली कॉलोनी की रवायतों को अब गहन लगने लगा है। इसकी बड़ी वजह बदलती कदरें हैं। वो कदरें, वो रवायतें और रख रखाव जब पूरे शहर में रुबाए ज़वाल हों तो दिल्ली कॉलोनी नई सूरत हाल से कैसे दामन बचा सकती थी। दिल्ली कॉलोनी का माहौल भी मुतासिर होने लगा है। हुमा हाल वाली गली या क्लिफ्टन से मुल्हक पट्टी के कुछ मकीन ऐसे भी हैं जो न जाने क्यों दिल्ली कॉलोनी का रिहायशी बताने में खजालत महसूस करने लगे हैं और अपने आप को कहकशां क्लिफ्टन का रिहायशी बताते हैं। छोटे छोटे मकानात वक्त गुजरने और ख़ानदान के बढ़ने के सबब 2-3 मंजिलों में तब्दील हो चुके हैं, बल्कि अब तो बिल्डिंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं, जहां पर बढ़ती हुई आबादी बहुत ज़्यादा है। बढ़ती हुई आबादी और तंग गलियों में तजावीज़ात के दम से तंग रास्ते मज़ीद तंग हो गए हैं। यूं काम के दिनों में वहां गाड़ी लेकर जाना अब अजाब बन जाता है कि आदमी जाने को तो चला जाए मगर बाहर निकलने की खैर मनाए। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो तंग गलियाँ और घुटन वाले घर मकीनों को शाबाश है कि बिना आसमान को देखे और ऑक्सीजन से महरूमी के बावजूद भी तकमील हयात में मसरूफ़ हैं। मगर ये कोई ज़िंदगी तो ना हुई। इब्तदाई ज़माने में छोटे छोटे मकानात में बसे लोगों की मुश्तरका खुशियों और मशागिल का जिक्र भी आता है। कॉलोनी की पहली लाइन में रहती मुन्नी आपा की बहू अगर झगड़ा कर जाती तो 5वीं लाइन के सिरे पर रहते चांद मियाँ तक ये खबर पहुंचने में देर न लगती। 70 बरस गुजर गए मगर छोटी मस्जिद फैल कर बड़ी हो गई, मगर अब भी उसका नाम छोटी मस्जिद ही है। बड़ी मस्जिद तो वो है जो दिल्ली मस्जिद कहलाती है, जिसका सदर दरवाज़ा ही क्या कुछ याद नहीं दिलाता। शमीम मस्जिद अहदे रफ्ता का अंदाज लिए क्या शान अख्तियार कर गई है। हर मस्जिद में हिफ्ज़ व नाजरा के मदरसे कायम हैं, जिसके सबब सुबह के औकात तलबा के दम से आबाद हैं, क्योंकि हर घर से बच्चे आते हैं और क्यों ना आएँ। कराची में हर बरादरी में बच्चों को हिफ्ज़ कुरान बनाने का जो रुझान चला है, इसकी सरखील यही बरादरी ही तो है। इस बरादरी में बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की मंजिल से सरफराज करवाना अव्वलीन तरजीह रही है, जो मुस्तकिल बरकरार है और यूं इस कॉलोनी की मसाजिद के साए तले कायम मदारस खूब आबाद हैं। छोटी मस्जिद में मोहतरम मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तरावी पढ़ाते थे, जिसके बाद खुलासा कुरान की मजलिस होती थी। लोग दूर दूर से शिरकत के लिए आते थे। अगरचे कॉलोनी के अंदर भी बिल्डिंगों की सूरत में रहायशी फ्लैट
बन रहे हैं, दूसरी बरादरियां भी सोसाइटी में वारद हो रही हैं। बदलती कुदरत के साथ वो ज़माने तो लुढ़क गए, मगर कॉलोनी का माहौल अब भी दिल्ली की सकाफत से मामूर नज़र आता है। बिल्डिंगों के नीचे खुली दुकानें और उनका मखसूस अवामी अंदाज गोया आप पीर कॉलोनी यानी कि PIB कॉलोनी, बंस रोड या रणछोड़ लेन की मार्केट में आ गए हैं। मज़ीद पीछे झांकें तो गोया जामिया मस्जिद और चितली कब्र पर खड़े हैं। यहाँ तो खूबसूरत गुलाबी टिकवी वाली और कसी हुई पूरियों की बहार है। दिल्ली वालों की ये बहार सुबह नाश्ता से लेकर दोपहर के कौरवे, रात को अंगीठी में पहलू बदलती सीखों और खुशबू उड़ाकर इश्तहार बढ़ाते कबाब की खुशबू कायम रहती है। तीनों औकात में निहारी गोया हर दम मुस्कुराती रहती है। इब्तदा में एक दुकान खुली थी, जरी हाउस के ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत का सामान कॉलोनी के अंदर ही दस्तयाब हो जाए। ये दुकान क्या खुली, एक के बाद एक दुकान खुलती चली गई और रफ्ता रफ्ता बाज़ार की सूरत अख्तियार कर गई। पारचाजात, मलबूसात, आराइश, सिलाई कढ़ाई के धागे, मोती, वकला, बुत्तू, अतरियात व तस्बीहात, कुतुब व रसाइल, मतवसत तबके और घरेलू तरबियत से मुतल्लिक हर तरह का सामान बहुत कुछ नज़र आता है। इस तरफ नज़र दौड़ाओ तो दुकानें ही दुकानें और फ्लैट ही फ्लैट नज़र आते हैं। छोटी छोटी सी गलियां, बड़े बड़े फ्लैट, छोटे छोटे बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं या कोई और गेम खेलते हुए नज़र आते हैं। हर शख्स अपने कारोबार में मगन है। किसी को किसी की इस वक्त परवाह नहीं, मगर लोग अपने कारोबार में मगन हैं। कोई मछली बेच रहा है, कोई डेकोरेशन का काम कर रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, कोई जरी का सामान बेच रहा है। बहुत यादें वाबस्ता है इस दिल्ली कॉलोनी में। अल्लाह हाफिज़।